नमस्कार, आप देख रहे हैं पाराशर वॉच यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर राकेश कुमार पाराशर। पिछली कड़ी में हमारे परम मित्र श्री कोमल सिंह, पूर्व उपनिदेशक, हिंदी शिक्षण योजना गुवाहाटी का सुझाव था इस प्रशिक्षण श्रृंखला में प्रशिक्षण का माध्यम हिंदी के साथ अंग्रेजी भी रखा जाए तो इस प्रशिक्षण की पहुंच हिंदीतर कार्मिकों तक हो सकेगी। उनका सुझाव इतना व्यवहारिक था कि हमारे सामने इसे स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई विकल्प ही नहीं था। इसलिए दूसरी कड़ी से हम प्रशिक्षण में यथासंभव हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं को अपनाएंगे। हेलो एंड वेलकम, यू आर वॉचिंग द पाराशर वॉच यूट्यूब चैनल एंड आई एम डॉक्टर राकेश कुमार पाराशर। In the previous episode, our esteemed friend Mr. Komal Singh, former Deputy Director Hindi Teaching Scheme Guwahati, suggested that the medium of training in this series should include English along with Hindi so that the reach of this training can extend to non-Hindi speaking personnel. His suggestion was so practical that we had no option but to accept it. Therefore, from the second episode onward, we will adopt both Hindi and English as the medium of training as far as possible. ये जाने कि अर्ध सरकारी पत्र किस प्रयोजन से लिखे जाते हैं। अर्ध सरकारी पत्र प्रयोग आमतौर पर सरकारी अधिकारियों के आपसी पत्र व्यवहार में विचारों या सूचना के आदान प्रदान या प्रेषण के लिए किया जाता है। इसमें निर्धारित कार्यविधि के पालन की आवश्यकता नहीं होती। अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग उस समय भी किया जा सकता है जब किसी अधिकारी का ध्यान व्यक्तिगत रूप से किसी मामले की ओर दिलाना चाहते हों, क्योंकि अर्ध सरकारी पत्र किसी ऐसे अधिकारी द्वारा लिखा जाना चाहिए जो आमतौर पर जिस अधिकारी को ऐसा पत्र भेजा जाना है उसके पद से एक स्तर अथवा दो स्तर नीचे का न हो। Find out what purpose demi-official letters are written for. Demi-official letter is generally used in correspondence between government officers for an interchange or communication of opinion or information without the formality of the prescribed procedures. It may also be used when it is desired that the matter should receive personal attention of the individual addressed. Since demi-official letter is written in the first person in a personal and friendly tone, it should be addressed by an officer in a ministry/department who is ordinarily not more than 1 or 2 levels below the officer to whom such communication is addressed. Note: for the purpose of determination of level, secretary/additional secretary and director/deputy secretary will be considered as one level. Communications to non-officials can also take the form of a demi-official letter. अर्ध सरकारी पत्र में प्रयुक्त कुछ आदर्श वाक्य सांचे यहां दे रहे हैं, इन्हें देखें और नोट कर लें। Some standard sentence templates used in demi-official letters are being given here. Please see and note them. कृपया हमारा दिनांक का पत्र संख्या देखें। Kindly refer to our letter number. Dated. इस मामले पर आवश्यक कार्रवाई करें और शीघ्र परिपत्र जारी करवा दें। Please take necessary action in this matter and arrange to issue the circular at the earliest. इस मामले पर अपने विचारों से शीघ्र अवगत कराएं। Kindly apprise us of your views on this matter at the earliest. आप इस ओर व्यक्तिगत ध्यान दें और अपेक्षित सूचनाएं शीघ्र भिजवा दें। Please give this matter your personal attention and send the required information at the earliest. आपके कार्यालय के जिन 2 सहायकों को हमारे कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाना है, उन्हें शीघ्र कार्यमुक्त कर दें ताकि कार्यालय का काम सुचारू रूप से चल सके। Kindly relieve the 2 assistants from your office who are to be sent on deputation to our office at the earliest, so that the work of the office may run smoothly. विभागीय पदोन्नति समिति की रिपोर्ट आने तक कृपया इसे रोक कर रखें। Please keep this pending till the report of the departmental promotion committee is received. आपका दिनांक, पत्र संख्या कार्यालय में नहीं मिल रहा है, कृपया उसकी प्रति भिजवा दें। Your letter number dated is not traceable in this office. Kindly send a copy of the same. मामला सहमति के लिए संघ लोक सेवा आयोग के पास भेजा जाना है, कृपया वांछित सूचना शीघ्र भिजवा दें। The case is to be referred to the Union Public Service Commission for concurrence. Kindly send the requisite information at the earliest. इस सहयोग के लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। I shall be obliged for your cooperation. अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूपण की विधि जानें। अर्ध सरकारी पत्र में शीर्ष के दाहिनी ओर अर्ध सरकारी पत्र संख्या लिखी जाती है। उसके ही नीचे मंत्रालय/विभाग/कार्यालय का पूरा पता लिखा जाता है। स्थान के नाम का आगे अल्प विराम लगाकर जारी करने की तिथि लिखी जाती है। अर्ध सरकारी पत्र के बाईं ओर प्रेषक का नाम, पदनाम तथा टेलीफोन नंबर लिखा जाता है, जैसे सामने प्रारूप द्विभाषी रूप में दिखाया गया है। इसके बाद दाहिनी ओर संबोधन में प्रियश्री, प्रियवर, प्रिय जी लिखा जाता है, यथा प्रिय श्री शर्मा, प्रियवर शर्मा जी आदि। संबोधन के बाद अर्ध सरकारी पत्र की विषय वस्तु लिखी जाती है।
विषय वस्तु के बाद अंतिम अनुच्छेद में सादर लिखते हैं या त्योहार, नववर्ष आदि की शुभकामनाएं भी दे सकते हैं। नीचे दाहिनी ओर अधोलेख के रूप में आपका लिखकर अल्प विराम लगाते हैं। इसके नीचे अर्ध सरकारी पत्र भेजने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर किए जाते हैं। इसके बाद नीचे बाईं ओर पत्र पाने वाले का नाम, पदनाम, पूरा पता लिखते हैं। अर्ध सरकारी पत्र किसी मंत्रालय विभाग के किसी ऐसे अधिकारी द्वारा लिखा जाना चाहिए जो आमतौर पर जिस अधिकारी को ऐसा पत्र भेजना है उसके पद स्तर से 1 अथवा 2 स्तर नीचे का न हो। स्तर निर्धारण के प्रयोजन के लिए सचिव, अपर सचिव एवं निदेशक, उप सचिव को एक ही स्तर का समझा जाएगा। मेथड ऑफ ड्राफ्टिंग अ डेमी ऑफिशियल लेटर। In a demi-official letter, the demi-official letter number is written at the top right. Just below it, the full address of the Ministry Department Office is mentioned. After the name of the place, a comma is used, followed by the date of issue. On the left side of the letter, the sender's name, designation, and telephone number are written, as shown in the bilingual format. After this, on the right side, the salutation is written as Priyashri, Priyavar, Priya, Priyashri Sharma, Priyavar Sharma ji, etc. Following the salutation, the main content, body, of the demi-official letter is written. At the end of the content, the concluding paragraph usually begins with Apaka, means yours sincerely, or may include greetings for festivals, New Year, etc. Below this, on the right side, the complimentary clause Apaka is written followed by a comma. Under it, the signature of the officer sending the demi-official letter is placed. After that, on the lower left side, the name, designation, and full address of the recipient are written. A demi-official letter should generally be written by an officer who is not 1 or 2 levels below the rank of the officer to whom the letter is being addressed. For the purpose of determining levels, the ranks of secretary, additional secretary, and director are considered equivalent, and similarly, deputies at the same level. अर्ध सरकारी पत्र के संबंध में कुछ स्मरणीय सूत्र जिनका ध्यान रखना है। Some memorable tips regarding semi-official letters which must be kept in mind. पत्र की भाषा औपचारिक एवं अनौपचारिक भाषा का प्रयोग होता है। इसके मसौदे में अपनत्व, निजता का बोध होता है, इसलिए उत्तम पुरुष एक वचन की भाषा में लिखा जाता है। अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग समान स्तर के अधिकारियों के बीच किसी मामले या प्रस्ताव पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान आकर्षित करने अथवा शीघ्र कार्रवाई के अनुरोध के लिए किया जाता है। अर्ध सरकारी पत्र में रंग संबंधी कोड निम्नानुसार है। मंत्री द्वारा भेजे जाने वाले अर्ध सरकारी पत्र में राष्ट्रीय प्रतीक व शीर्ष को नीले रंग में, अधिकारी द्वारा भेजे जाने वाले अर्ध सरकारी पत्र में राष्ट्रीय प्रतीक व शीर्ष लाल रंग तथा स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा भेजे जाने वाले अर्ध सरकारी पत्र के प्रतीक व शीर्ष हरे रंग में दर्शाए जाएंगे। अर्ध सरकारी पत्र में संबोधन के रूप में प्रिय श्री, प्रियवर, आदरणीय, माननीय श्री, सुश्री शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार अधोलेख के रूप में आपका शब्द लिखा जाता है। यदि पत्र लिखने वाले अधिकारी कोई महिला है तो वे आपकी शब्द का प्रयोग करने में हिचकिचाती हैं। इसके पीछे भारतीय संस्कृति की ऐसी अवधारणा कि महिला यदि अविवाहित है तो उसका सामाजिक व्यवहार एक ईसाई नन की तरह होता है। वह किसी के लिए भी आपकी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकती और विवाह के पश्चात वह अपने पति के लिए ही आपकी लिखती है। यही बात प्रिय शब्द के बारे में है। इसलिए महिलाएं अधोलेख के रूप में भावनिष्ठ शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। यह संबोधन अधिकारी को अपने हाथ से स्वयं लिखना चाहिए। ऐसे ही अंत में लिखे जाने वाले वाक्य जैसे सादर / शुभकामनाओं सहित / नव वर्ष की शुभकामनाएं आदि, इन्हें भी अधिकारी को अपने हाथ से लिखा जाना चाहिए। ऐसा करने से भावनात्मक दृष्टि से अनौपचारिक रूप से जुड़ जाते हैं। वरिष्ठता क्रम की दृष्टि से संबोधन में जी शब्द भी जोड़ सकते हैं, जैसे श्री शर्मा जी, सुश्री कुलकर्णी जी आदि। अस सब पे एक ही पृष्ठ का होना चाहिए। यदि आर्यसभ पत्र में दिया जाने वाला संदेश लंबा हो तो उसका उल्लेख छोटे एवं सारगर्भित अनुच्छेदों में एक ही पृष्ठ में किया जाना चाहिए। विस्तृत वर्णन के लिए अलग से परिशिष्ट दिया जा सकता है। अर्ध सरकारी पत्र के लिए सामान्यतः विशेष प्रकार के छपे हुए पैड होते हैं। अर्ध सरकारी पत्र में पृष्ठांकन नहीं किया जाता, अर्थात अर्ध सरकारी पत्र किसी अन्य अधिकारी को पृष्ठांकित नहीं किया जा सकता। Some important points to remember regarding demi-official letters. The language of a demi-official letter is a mix of formal and informal styles. Its draft reflects a sense of personal touch and formality / intimacy. Therefore, it is written in the first person singular. Demi-official letters are used between officers of the same level to personally draw attention to a matter or proposal or to request prompt action. The color coding in demi-official letters is as follows. Letter sent by a minister. The national emblem and heading are in blue. Letter sent by an adhikari, officer.
The national emblem and heading are in red. Letters sent by voluntary organizations. The emblem and heading are in green. In demi-official letters, salutations such as Dear Shri, Dear Sir, Respected Honorable Shri /MS are used. Similarly, the complimentary clause yours is written. If the officer writing the letter is a woman, she may hesitate to use aapka in the feminine form due to certain traditional cultural notions, where an unmarried woman is expected to maintain a socially neutral stance, similar to a nun. And after marriage, she uses such expressions only for her husband. For this reason, women officers may use bhavanisht as the complimentary clause. The salutation should be handwritten by the officer. Likewise, closing expressions such as with regards / with best wishes / New Year greetings should also be handwritten, as this adds a personal and emotional touch. As per seniority, Ji may also be added in the salutation. For example, Shri Sharma Ji, Miss Kulkarni Ji, etc. A demi-official letter should ideally be limited to a single page. If the message is lengthy, it should be presented in short and concise paragraphs within one page. Detailed information may be provided separately as an annexure. Generally, special printed pads are used for demi-official letters. Demi-official letters are not endorsed, that is, they are not officially endorsed or copied to other officers. इस स्थिति को पढ़ें। इस व्याख्यान में सिखाई गई प्रारूपण की विधि के अनुसार इस प्रकार प्रारूपण यानी मसौदा तैयार करेंगे। Read this situation. Prepare the draft in this manner according to the drafting method taught in this lecture. इस स्थिति को पढ़ें। इस व्याख्यान में सिखाई गई प्रारूपण की विधि के अनुसार इस प्रकार प्रारूपण यानी मसौदा तैयार करेंगे। Read this situation. Prepare the draft in this manner according to the drafting method taught in this lecture. इस स्थिति को पढ़ें। इस व्याख्यान में सिखाई गई प्रारूपण की विधि के अनुसार इस प्रकार प्रारूपण यानी मसौदा तैयार करेंगे। Read this situation. Prepare the draft in this manner according to the drafting method taught in this lecture. अन्य उदाहरण, अदर एग्जाम्पल्स। राजनेताओं के स्तर पर लिखे जाने वाले अर्ध सरकारी पत्र का एक नमूना देखें, जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उनकी मां के निधन पर संवेदना व्यक्त करने के लिए लिखे एक अर्ध सरकारी पत्र का नमूना देखें। Let's look at an example of a demi-official letter written at the level of political leaders. In this case, it's a letter written by the Prime Minister to the Chief Minister of Uttar Pradesh to express condolences on the passing of his mother. हम यहाँ हिंदी परीक्षाओं में अर्ध सरकारी पत्र से संबंधित अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न उनके उत्तर सहित दे रहे हैं। Providing some of the most frequently asked questions related to demi-official letters in Hindi examinations along with their answers. प्रश्न 1. अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग किन अधिकारियों के बीच किया जाता है? उत्तर: अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग समान स्तर के राजपत्रित अधिकारियों के बीच होता है। Question 1. Between which officers are demi-official letters used? Answer: Demi-official letters are used between gazetted officers of the same level. प्रश्न 2. अर्ध सरकारी पत्र में संबोधन किस रूप में किया जाता है? उत्तर: अर्ध सरकारी पत्र संबोधन के रूप में प्रिय, प्रियश्री, माननीय श्री, माननीय सुश्री, आदरणीय श्री, आदरणीय सुश्री लिखा जाता है और आदरार्थ नाम के बाद वरिष्ठता क्रम में जी भी जोड़ा जाता है। Question 2. How is the salutation written in a demi-official letter? Answer: In demi-official letters, salutations such as Priya, Priyashri, Mananiya Shri, Mananiya Sushri, Adarniya Shri, Adarniya Sushri used. The honorific G may also be added after the name according to seniority. प्रश्न 3. अर्ध सरकारी पत्र में भेजने वाले अधिकारी का नाम और पदनाम कहाँ लिखा जाता है? उत्तर:
अर्ध सरकारी पत्र में भेजने वाले अधिकारी का नाम और पदनाम सबसे ऊपर बाईं ओर लिखा जाता है। क्वेश्चन 3, वेयर आर द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द सेंडिंग ऑफिसर रिटन इन अ डेमी ऑफिशियल लेटर? आंसर, द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द सेंडिंग ऑफिसर आर रिटन एट द टॉप लेफ्ट साइड ऑफ द लेटर। प्रश्न 4, अर्ध सरकारी पत्र की भाषा कैसी होती है? उत्तर, अर्ध सरकारी पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होती है और ये उत्तम पुरुष एक वचन में लिखा जाता है। इसकी भाषा वैयक्तिक एवं मित्रवत होती है। क्वेश्चन 4, व्हाट इज द नेचर ऑफ द लैंग्वेज यूज्ड इन अ डेमी ऑफिशियल लेटर? आंसर, द लैंग्वेज ऑफ अ डेमी ऑफिशियल लेटर इज सिंपल एंड क्लियर. It is written in the first person singular and has a personal and friendly tone. प्रश्न 5, अर्ध सरकारी पत्र में पता कहाँ लिखा जाता है? उत्तर, अर्ध सरकारी पत्र में प्राप्त करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय का नाम एवं पता और बाईं तरफ नीचे लिखा जाता है। क्वेश्चन 5, where is the address written in a demi-official letter? Answer, in a demi-official letter the name, designation, office name and address of the receiving officer are written at the bottom left side. प्रश्न 6, अर्ध सरकारी पत्र का प्रतिलिपि पृष्ठांकित की जा सकती है? उत्तर, जी नहीं, अर्ध सरकारी पत्र का प्रतिलिपि पृष्ठांकित नहीं की जा सकती है। क्वेश्चन 6, कैन अ डेमी ऑफिशियल लेटर बी कॉपीड और ऑफिशियली एंडोर्स्ड? आंसर, नो, अ डेमी ऑफिशियल लेटर कैन नॉट बी कॉपीड और ऑफिशियली एंडोर्स्ड। पाराशर उवाच। यूट्यूब चैनल की यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिखकर अवश्य अवगत कराएं। इस वीडियो को लाइक करें यदि हमसे पहली बार जुड़े हैं, तो अपने व्यस्ततम समय में से कुछ पल निकालकर इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको यथासमय मिल सके। पुनश्च इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए विशेष धन्यवाद। हाउ डिड यू लाइक दिस प्रेजेंटेशन ऑन द पाराशर उवाच यूट्यूब चैनल? Please do share your feedback in the comment box. Don't forget to like this video. If you are visiting us for the first time, kindly take a moment out of your busy schedule to subscribe to the channel so you can receive timely notifications of our upcoming videos. Once again, thank you very much for watching this video till the end.